Namaskar. On this blessed day when a living legend has heralded the spring with her own gracious presence at Alcon International, we welcome this scintillating gathering with joy in our eyes, faith in our soul, and hope in our hearts. Our Vasant has become an utsav with our Guruji's benign presence. गुरु के आवन करे घर पावन, गुरु की आवन करे घर पावन, गुरु गुण वर्ण्यो न जाए है, गुरु के वचन जो बरसे मेह सम, चित्त आनंद समाए है. This third day of the second month of 2021 is going to be an unforgettable day in the history of our school. Pranam to Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji. The entire Alcon family echoes the warm welcome to you. I feel privileged to welcome our respected chairperson, Dr. Rohini Ahluwalia, Director, Alcon Group of Schools, Dr. Ashok Kumar Pandey, Principal, Alcon Public School, Dr. Deepak Bisht, HMs, AHMs, eminent guests, and luminaries. Before we commence the proceedings of the day, most respectfully, let me invite our illustrious dignitaries to light the lamp of our earnest prayers amidst the melodious chants of the shlokas, our Swaranjali to Goddess of all arts and knowledge, Devi Saraswati. Ya kundindu tushar har dhabala, ya shobra vastavrita, ya veeravardand mandita kara, ya shwet padmasana, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा. Thank you, Ananya ma'am. Having invoked the blessings of the Almighty, let us now know more about the Guru whose words we are so eager to listen to. Dr. Sonal Mansingh was nominated by the President of India to Rajya Sabha, the upper house of Indian Parliament, in July 2018 in recognition of her lifelong dedication and service to India's arts. She is the recipient of Padma Vibhushan in 2003 from Shri APJ Abdul Kalam and Padma Bhushan in 1992 from Shri R. Venkataraman. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, nominated her as Navratna for Swachh Bharat Abhiyan. Her unique contribution has been her lifelong work using her knowledge to address socio-cultural issues through the chosen medium of dance as a soloist, teacher, choreographer, and motivational speaker. As the founder president of Sri Kamakhya Kalapeeth, Center for Indian Classical Dances, established in 1977 at Delhi, she has trained several thousand talented students who are carrying the message of Indian culture globally. She teaches the art as holistic concept, combining music, yoga, Sanskrit, and cultural traditions of India. Our chairperson, Dr. Rohini Ahluwalia, is widely known for her dedication towards education, innovation, and bringing tech solutions to achieve the global universal literacy. Her heart throbs for children, and she wishes to give them firm roots of Indian culture before they spread their wings to fly. May I request our director, sir, Dr. Ashok Kumar Pandey, to present our sapling of solidarity to our chairperson.
So I now request our principal, Mr. Sanjay Yadav, to address the gathering and share his thoughts. A very good morning and namaskar to everyone. In its true spirit, Alcon International family welcomes each one of you on this auspicious day, which is the new beginning. And when we talk about new beginning, Vasant Utsav is something which brings a transition. It gives us a relief from the biting cold to a change in the entire nature. And this is how Vasant has been acknowledged. Keeping to its tradition in Alcon International School, when we talk about global values and Indian perspective. So we have always taken pride, and we welcome the season, we welcome the true artists, and we want our children to learn those values. This is deep rooted, and that is what defines our Indian culture. Today we are extremely blessed to have Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh ji, who is here to bless us in her own unique way. So I'm not going to tell much about it, rather we are all here to feel the blessings and live it, because believe you me, it is going to be a unique lifetime experience for each one of us. I, on behalf of Alcon family, extend a warm welcome to our chairperson, Dr. Rohini Ahluwalia, our director sir, dignitaries, dear colleagues, as well as students. We wanted our students who have been doing very well in fields of art and culture to experience and witness, because this is going to be a lifetime experience for them. And this imprint which will be there will be a motivation for them, and they are here to carry the Indian culture forward. So as I said, that it's not the time to take much, rather to enjoy. जैसे बोलते हैं कि मैम की जो blessings होंगी उसका आनंद लीजिए, and let the Vasantotsav 2021 commence with this. Thank you so much. Thank you so much, sir. Your words are truly inspiring, sir. Vasantotsav is the cherished vision of our chairperson, Dr. Rohini Ahluwalia, whose every endeavor aims at bringing the Indian values in the character building of students. May I request our Guruji, Sonal Mansingh ji, to kindly step on the stage. The audience is eagerly waiting for you to appear, and we have to offer our pranam to you with utmost reverence. पानी लगाना चाहिए था।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवानि सहितं नमामि भवानि सहितं ढिमक डिम डिम 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 भजत डमरु बहत गंग जटामुखम मृगुमकिट चंद्र ललाट शोभित भस्म मुंड माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बन ही देव प्रणाम धा कद्दा मुंडल माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बन ही देव प्रणाम धा कद्दा मुंडल माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बन ही देव प्रणाम धा कद्दा शिव। शिव कौन है, क्या है, कहाँ है, क्यों है? कभी किसी ने प्रश्न पूछा हो तो उसका उत्तर अंदर से ही आता है। कहते हैं कि जितना बाहर खोजो उतना ही यदि अपने अंदर खोजो तो उत्तर मिल ही जाता है। कुछ आकाश को देखना, ग्रह तारे नक्षत्र, सूर्य, हमारी पूरी सृष्टि, एक सौर मंडल, one solar system in which we exist. Our Earth is the smallest planet. ऐसे करोड़ों solar systems exist in Akash Ganga, Milky Way. And there are black holes in Akash Ganga. Till today, the astrophysicists
great minds are not able to tell us ये जो काला मुंह है, ब्लैक होल, जो पूरी की पूरी सोलर सिस्टम्स को निगल जाता है. Once these stars enter, the planets enter, they never come out. But nobody knows where they go. Where is the other end, the opening of this dark tunnel called dark hole in the Milky Way? And there are many such. तो ये सब क्या है? There are stars and there are nakshatras and planetary systems, and we say our universe. We forget that now the scientists are talking about multiverse. Many, many universes in the ever expanding space, a seam. Those space scientists, nuclear scientists, astrophysicists, रॉकेट साइंटिस्ट सब मिलके खोज रहे हैं कि क्या है ये. हमारे पूर्वजों ने, द सीकर्स, ऋषि मुनीज, एंड दोज सिंपल पीपल who were one with the atmosphere, with the ambience, with this earth, with the sky, with the seasons, they understood ये और कुछ नहीं है बट शिव है. क्यों? कि शिव वो तत्व है जो दिखता नहीं है लेकिन सर्वत्र छाया हुआ है. Not only here, not only on our earth, not only in our solar system, not only in all the solar systems in our one universe, but in every imaginable universes in the space. तो हमें तो बताया गया कि 14 ब्रह्मांड की कल्पना है. One universe is one ब्रह्मांड. It's elliptical, it's not round. Elliptical, egg-shaped. 14. अरे भैया, एक पृथ्वी का तो पता नहीं है. अभी भी वीनस और मार्स पे जाने की कोशिशें चल रही हैं. ब्रह्मांड की तो क्या बात करें. बट एज आई सेड, इन डीपेस्ट मेडिटेशन दे एक्सपीरियंस, अनुभूति दिखता है, अनुभूति होती है, और उसी अनुभूति को शिव कहते हैं. तो प्रश्न ये है कि हाउ these things move around, seasons change on our planet. We don't know about anything else there, out there. But सब अपनी अपनी जगह स्थिर हैं, लटके हुए हैं स्पेस में. And when they have to move, तो मीटियोर, धूमकेतु की तरह आते हैं अपने समय पे. All in their own good time, appointed time. ये कैसे होता है? तो उसको हम कहते हैं शक्ति, ऊर्जा. That those vibrations that began. तो शिव बिना शक्ति के नहीं हो सकता, और शक्ति शिव में ओतप्रोत है. और यही बात आज थोड़ी बहुत हम करेंगे कि पहले शिव, पहले शक्ति, दोनों एक के साथ ओतप्रोत. लेकिन शिव के, शक्ति के बारे में फिर बाद में बात करेंगे. पहले शिव की स्तुति करते हैं. उनके हजारों लाखों करोड़ों नाम है, शक्ति के हजारों लाखों करोड़ों नाम है. तो कुछ थोड़े से याद करते हैं. शिव 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 शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 महाबली शिव महाबली शिव महाबली शिव महाबली शिव महाबली शिव महाबली महाबली शिव शिव आदि अंत शिव आदि अंत शिव महाबली शिव आदि अंत शिव पूर्ण सब सुकाम पूर्ण सब सुखाम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव 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 की अनेक स्वरूपों का वर्णन मिलता है। अब the question is, if there is nothing that we can really put our hands on, हम लोग human beings have become very logical. Concrete है, दिखता है, तो हम मानेंगे. This modern science always has demanded proof, evidence. But spirituality or mysticism does not depend on scientific proofs. Those evidences are for small minds. जो evidence आपके experience में आता है, mysticism is all about that. And science today मानता है, विज्ञान मानता है, ज्ञान विज्ञान सारी प्रक्रियाएं जहां खत्म हो जाती हैं, वहीं से ये एक्सपीरियंस अनुभव शुरू होता है। तो वो शिव, उसके बहुत सारे रूप हैं, शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, और ये भारतवर्ष की अनूठी परंपरा है, अनूठी सोच है, बेजोड़। क्यों? जब हम कहेंगे कि वो शिवत्व, वो ऊर्जा आज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई हमारे वक्त में, अभी 100 साल 150 साल की बात है। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से मालूम है क्या कि शिव का वो स्वरूप नटराज, नटों के राजा, डांसर्स के राजा, वो महाराजा, वो स्वरूप उस एटॉमिक क्षण की अनुभूति आपको देता है इन कॉन्क्रीट इमेज। जो बात करते हैं ना, क्या गॉड पार्टिकल एंड हिगिन बोसन, क्या क्या नाम दिए हैं, जहाँ शुरू हुआ, बिग धड़ाका हुआ स्पेस में, बिग बैंग। हम लोगों ने, भारतवासियों ने उसको इतना सुंदर काव्यात्मक स्वरूप दिया, द पोएटिक इमेज which tells you like that what happened. नटराज की आपने देखे होंगे, यहाँ भी दिखा रहे हैं,
All over the world, every museum worth its name has Nataraja idol. और एक बात बता दूं कि स्विट्जरलैंड का जिनीवा शहर है, वहाँ जिनीवा शहर के बाहर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CERN, the acronym CERN. It's a French name of the institute, so the acronym is CERN. मैं गई हूँ वहाँ कई बार और वहाँ पे मेरा डांस भी हुआ है। 2004 में 18 जुलाई को भारत सरकार ने 6 फीट ऊंची नटराज की ब्रॉन्ज इमेज वहाँ पे भेंट की। क्यों? और आज भी वो इतने आदर से वहाँ रखा गया है नटराज को, और सारे लोगों को पता है, ऑल द न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको पता है। क्यों है? हमें नहीं पता। और हमें क्यों नहीं पता है? बिकॉज वी डोंट बॉदर टू नो अबाउट आवर ओन कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, थॉट्स, फिलॉसफी। अब ये उनके दाहिने ऊपर के हाथ में, प्लीज शो नटराज अगेन, डमरू है। डमरू है ना? इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। दैट इज द फर्स्ट साउंड वाइब्रेशन, जहां कुछ नहीं। ये भी हमारे यहां स्तोत्र है, द हिम ऑफ दोज ऋषिज, जो पूछ रहे हैं कि जब समय नहीं था, समय शुरू नहीं हुआ था, the time had not begun, there was no night and no day, there was no water, there was no heaven and no earth. What was there? तो उस स्पेस में पहला साउंड, the sound vibrations start, ऊर्जा के vibrations, and these vibrations start creation. डमरू, अग्नि, लाइट। बाइबल में कहते हैं लेट देयर बी लाइट। लाइट का मतलब क्या? अंधकार दूर, अज्ञानता का अंधकार दूर, अविद्या का अंधकार दूर और प्रकाश, लाइट ऑफ नॉलेज। फिर आहिना, नीचे वाला हाथ देखिए, अभय, अभय, डू नॉट फियर, अभय हस्त। और ये हाथ करी हस्त, लाइक हाथी की सूंड की तरह, पॉइंटिंग वेयर? टू द राइट फुट, नीचे। राइट फुट ऑन द बैक ऑफ अ स्मॉल डिसफिगर्ड फिगर। उसका नाम है अपस्मार पुरुष। स्मार, स्मरण। To forget is apasmara. When you forget your vidya, your knowledge, who you are, what this is, it is apasmara purusha, the ignorant one. और उसके किस पे? स्पाइन पे शिव का फर्म फुट है, राइट। क्यों? कि जब वो दबता है तो ऑल द चक्रस, नॉट चक्रास प्लीज, चक्र, सारे चक्र जागृत होते हैं और विद्या प्रकट होती है। और जो बायां नीचे का हाथ है वो उसको भी दिखाता है, जो बायां पैर, लिफ्टिंग ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन पड़ा नहीं रहेगा, क्रिएशन। ये है नटराज। तो आपके सामने मैं लाऊंगी मेरी शिष्या नंदिनी को, एक छोटा, बहुत छोटा वो प्रस्तुत करेगी नृत्य, नटेश कौत्वम। और एक बहुत प्रख्यात तमिल गीत में से आखिरी मैंने लिया है पद,
जो बताता है कि जब नटराज ने आनंद तांडव किया चिदंबरम में, दक्षिण का चिदंबरम, चित्त अंबरम हृदय में, लेकिन मंदिर है, वहाँ नृत्य किया। एंड प्लीज रिमेंबर, चिदंबरम में कोई नटराज की मूर्ति नहीं है। उसका जो गर्भगृह है, सैंक्टम सैंक्टोरम, वो खाली है, स्पेस, चित्त में स्पेस है, अंबर है। आई मीन, मुझे तो मेरी रोमांच हो जाते हैं जब मैं ये देखती हूँ, समझ में आता है कि क्या कह गए हमारे पुरखे, क्या हमें दे गए, और हम ऐसे लेने के बदले अब यूं हैं। कृपा करके आप लोग सब फिर से लीजिए, ग्रहण कीजिए। इससे बड़ी फिलॉसफी कुछ नहीं है दुनिया में। तो कहते हैं कि जब उन्होंने ये नृत्य किया, अष्ट दिशयोर गिड गिडंग, 8 दिशाएं, 4 कौन सा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 कोण जिसके नाम हमारे आज के स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, मुझे पता है, मैं बार बार बताती रहती हूँ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व जिसको आप नॉर्थ ईस्ट कहते हैं वो है ईशान, ईश, ईश, वहाँ से यीशु ख्रिस्त। वहाँ पे है पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, उसको कहते हैं अग्नि। और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो कोण है उसको कहते हैं नैऋत्य, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो है वायव्य, वायु। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य 8 दिशाएं, अष्ट दिशो गिड गिडंग, हिल गई। शेषन तले नडंग, तो शेषनाग के सर पे पृथ्वी वो धारण किए हुए हैं, ये कल्पना है। शेषनाग डोलने लगा। गंगई तुड़ी सिद्धरा, जो गंगा नदी है, जो जीवन देने वाला पानी है, जल है सृष्टि में, वो एकदम जोर से कष्ट फोर्थ। और जिन्होंने, जिन ऋषि मुनियों ने ये देखा, अपने अंतरतम समाधि में वो मोक्ष की प्राप्ति कर गए। तो ऐसे एक छोटा आपके सामने नंदिनी प्रस्तुत करेगी। तक्क धिमी तक्क झरणु तक्क झरणु तक्क धिमी तक्क झरणु तक्क तदि गिणतो तड़ंगु तक्क दिक्कु तक्क तदि गिणतो धीम धिम मित्त धीम मित्त धीम धिम मित्त धीम मित्त तद्धीम तद्धीम तड़वन मुनि जदो सकल सुरासुर सन्नुत पाद किणी किणी झम झम झण 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 नूपुर लय घण 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 विधि हरि सेवितताम तत्तताम तत्त तक्किट किट तक तक्किट किट तक तांडविडम्ब तिक्किट किट तक तिक्किट किट तक व्याघ्र संकर तुंकिट किट तक तुंकिट किट तक त्रिशूलधरा नन्वाहना नाद योग प्रिय झगड़म किट तक तुम तुम तत्तक तई झक झक जय जय शशि रवि भूषण रूप भयंकर डमरुगहस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाद नटेश कौतुक तक तक ताम तिक तिक तई तक उदित ताकीर तुम किट किट तक संगीत किट तक देखू ताम तत तताम अष्टदिशयुर्गिड गिडंग शेषं तले नडंग अंड मदिर गंगै तुळसिधरा पोन्नाडरु कोंदाड
बाल कृष्ण पाड़ा चढ़याड़ अरऊ अडमाड़ा अधिन पडमाड़ा तोम तोम इंद्र पदवी गटंडो तकिट तक झम तकणम तरि कुंतरि धीनु धिमित तननम करि कुंतरि ततिनु धिनु तदि लाम धिमिता हत तत् झडु झडुम तटिंग टिंग कुकुतैया तैया तधिमित किट ताहत झडु तदि तकिट ताहु तकिट तै तोम आडिनार वेकुनागरी गमागवे कनक सवे आनंदम There are thousands of stories. भारतवर्ष जो है ना, इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज. क्यों? कहानियां खूब. इसको हम मिथोलॉजी मैथोलॉजी कहते हैं ना, गलत. These are not fairy tales. These are not made up. ये कहानियां, इसको हम कहते हैं पुराण. पुरातन में जो हो गया, those episodes, those incidents, those characters were there, that happened, and are there in the collective memory of people. Generation after generation, हमारे यहाँ ये पद्धति थी, the system, परंपरा, tradition of Shruti and Smriti. Oral and memory, to memorize. अभी तो मैं कहती हूँ 9 और 5 कितना, तो कहाँ गया, मोबाइल उठाते हैं. श्रुति एंड स्मृति, इसी पे भारतवर्ष की परंपराएं, शास्त्र, वेद, पुराण सब है. तो परंपरागत कहानियां नहीं कहूँगी, पुराण हमारे पास हैं, और उसमें जो जो बताया गया है उस सभी में कुछ न कुछ उपदेश है. दे आर नॉट जस्ट एज स्टोरीज, बट एवरी स्टोरी, एवरी इंसिडेंट, एवरी एपिसोड हैज समथिंग टू टेल यू अबाउट लाइफ, अबाउट वैल्यूज, हाउ टू लिव लाइफ. तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एरोगेंस के बारे में है. एरोगेंस नॉर्मल यहाँ है, और ये गर्दन अकड़ जाती है, कंधे पीठ अकड़ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं. तो एरोगेंस के बारे में है. आपने रावण का नाम सुना था ना, सुना होगा. रावण, श्रीलंका, लंका में उनका निवास, लेकिन एम्परर, सम्राट, उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ, सारे ग्रह उनके चरणों में, और परम शिव भक्त, महायोगी ऑल्सो, बहुत शास्त्रों का जानकार, ऐसा वैसा नहीं. नॉट लाइक पॉलिटिकल नेताज ऑफ टुडे. नो. मैं क्यों कह रही हूँ कि नॉट टू मेक फन, बट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम कितने एक अलग मोल्ड में ढल गए हैं कि वी डू नॉट
need to understand the importance of knowing or wanting to know, the sense of inquiry to go out of your immediate, pleasant, comfortable paridhi. तो रावण ये सब था, परम शिव भक्त था। उसने सोचा कि मुझे कैलाश जाना पड़ता है, क्यों न मैं मेरे इष्ट देव प्रभु को उनके पूरे परिवार के साथ श्रीलंका में ले आऊं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करूं, बहुत अच्छा होगा। तो रावण जी तो चल दिए और पहुंच गए कैलाश। और कैलाश वो शिखर है, वो परम पवित्र स्थान है। सारे विश्व में लोग एवरेस्ट चढ़ गए, मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड चढ़ गए, एंडीज एंड रॉकी माउंटेन इन साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका चढ़ गए, कुछ नहीं छोड़ा बाकी। कैलाश पर आज तक किसी मूर्ख मनुष्य के पैर नहीं पड़े हैं। क्यों? कि ये नॉट ओनली फॉर सनातन धर्म, हिंदुइज्म कोई चीज़ नहीं होती है, कॉइन कर दिया गया, बाहर के लोगों ने कॉइन कर दिया, हम बोलते चले गए। दैट विच इज पेरेनियल, शाश्वत, इटर्नल इज द सनातन। तो नाइदर सनातनी जो लोग हैं, नॉर बुद्धिस्ट, नॉर जैन्स, नॉर द बॉर्न पीपल ऑफ तिब्बत, नॉर ऑफ म्यांमार, कोई वहाँ पर सब जाके कैलाश हुए। और हमारे पुरखों ने देखा है ध्यान में, समाधि में, कि वहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती, उनका निवास है। आपकी कल्पना कीजिए, हमारे ये जो आंखें हैं ना, दे कांट इवन सी प्रॉपरली हियर, नहीं दिखता। कुछ कूड़ा पड़ा है तो नहीं दिखता, कोई पेड़ पे सुंदर फूल निकले हैं नहीं दिखता। तो अंदर के चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य दृष्टि तब आती है कि जब आप उसमें डूब जाते हैं, आप बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं उस अनुभव के साथ। तो कैलाश पे तो कैलाश पे है, रावण जी गए, चले, और कैलाश एक क्षण के लिए, एक पार्वती जी, शिव ने देखा और अपना दाहिना अंगूठा, राइट पिक टो, इतना तिल भर दबाया, तिल भर। वहां रावण की हालत तो खस्ता हो गई, बुरी हो गई। अवस्था उसकी क्या हुई कि वो रावण जिसको हम कहते हैं कि उसके समय का और उसके बाद के समय का आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। सर घुस गया, यहां तक हाथ नीचे दब गए, मुकुट गिर गया, पैर लंबे हो गए, तड़प रहा है, मुंह से बोला नहीं जा रहा, आंख से आंसू निकल रहे हैं। तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया और स्वतः ही अंतर्स्फुरना से क्षमा याचना, हाउ टू अपोलोजाइज, oh I'm so sorry भगवान शिव, I'm so sorry, please release me। No, नहीं चलता, नहीं चलता। पूरे एक एक रोम में से जो आर्तनाद निकला वो क्या था? इसको कहते हैं रावण का शिव तांडव स्तोत्रम। मैं उसके 2 पद, तो रावण जो था तो उसका स्तोत्र भी उसी तरह गशिंग फोर्थ अंतरतम से उसके जो शब्द निकले। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले
जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमट्टमट्टमट्ट निनादवट्टमर्वयम् डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः तनोतु नः शिवः शिवः तनोतु नः शिवः शिवः जटाकटाह संभ्रमं रमं निलिम्ब निर्झरी जटाकटाह संभ्रमं रमं निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके शेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मेरी गुजराती मातृभाषा है, उसमें कहावत है, गर्व तो राजा रावणनो पण न रह्यो तो तू कौन। गर्व अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो सोच तू कौन है, किस खेत की मूली है। ये हमको बचपन से बहुत जोरों से बताया गया, परिवार में, घर में भी और गुरुओं के द्वारा। इतना छींटा भर भी यदि ये हुआ तो पता चलता था, आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ। और इसी की वजह से जब आप नीचे होंगे तब तो आप ऊपर उठेंगे ना, आप वहीं रहेंगे और कब गिरे पता नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी हो। इसीलिए ऐसे ऐसी जो कहानियां हैं उसमें बहुत तत्व हैं। एक और कहानी आपको बताती हूँ। आज नमामि गंगे स्वच्छ गंगा अभियान चल रहे हैं कुछ वर्षों से। क्यों चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम क्यों चल रहे हैं। आपको पता है क्यों चल रहे हैं? पता है? 100, 200, 300 साल पहले तो नहीं था। इवन जब मेरे दादाजी जी रहे थे, 1968 में गए, तो हमने अपने बचपन में भी ये सब नहीं सुना। ये सब क्या हो गया? What have we done to our rivers? गंगा का हमने क्या सत्यानाश किया। कृष्ण की यमुना दिल्ली में देखिए, नाला दुर्गंध वाला नाला बनके है, गटर है, और हम बड़े हाथ जोड़ के जो सनातन प्रथाएं जानते हैं, तो किसी भी मंगल प्रसंग के पहले आह्वान होता है, जो 7 नदियां हैं हमारी पवित्र नदियां, नदियां सारी पवित्र हैं, लेकिन 7 नदियों के नाम लिए जाते हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी।
तो गंगा जी वो नदी है जो हम कहते हैं कि स्वर्ग से, यानी शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अर्थ व्हेन अर्थ वॉज मेड क्रिएटेड। कहानी इस तरीके से है, और ये अगेन कंटेन्ड इन द कलेक्टिव मेमोरी। श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा सगर, इक्ष्वाकु वंश, द डायनेस्टी वॉज कॉल्ड इक्ष्वाकु, सोलर डायनेस्टी, सन डायनेस्टी। तो उस सूर्य वंश में राजा सगर हुए, एंड हिज 100 प्रिंसेस, बहुत सारी रानियां। द प्रिंसेस, राजकुमार शिकार करने गए, और शिकार करते करते देखा कि एक पेड़ के नीचे एक ऋषि तप में बैठे हुए हैं। तो मस्ती सूझी। अब मस्ती क्या, तो उनको तरह तरह से गुदगुदी करो, उनके नाक में डालो, इधर डालो, फिर उनको मुक्के मारो, उनके बाल खींचो, जटा खींचो, और उनके आसपास हल्ला गुल्ला शोर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हद तब हो गई कि जब उनके गले में मरा हुआ कोबरा डाला। फ्रॉम डीप समाधि ऋषि की आंखें खुली, और जैसे खुली तो 100 के 100 भस्म की ढेरी बन गए, भस्म की ढेरी बन गए। They turned into ashes, they burnt. 100 जब वापस नहीं आए तो राजा सगर और सब खोजने निकले। ऋषि तो वापस चले गए अपने समाधि में, और देखा ये भस्म की ढेरियां पड़ी हुई हैं। उसी दुख में उनका अंत हुआ। और ये कहानी, ये राजा सगर के पुत्रों का क्या हुआ, विनाश उसकी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। उनका श्राद्ध नहीं हुआ, उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनके आत्मा भटक रहे हैं। तो 10वीं पीढ़ी में भगीरथ हुआ, और भगीरथ ने यह निश्चय किया कि ये मैं करूँगा। उसने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा, देखो ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम उस देवों की नदी सुरसरी गंगा की विनती करो, उन्हीं के जल में ये शक्ति है कि इनका निर्वाण हो, इनकी मुक्ति हो। भगीरथ तपस्या में बैठ गया। गंगा जी प्रकट हुई, प्रसन्न हुई। भगीरथ ने कहा, माँ आप आओ और मेरे पूर्वजों की मुक्ति करो। गंगा ने कहा, मैं आऊंगी, लेकिन मेरे प्रवाह को झीलना आसान नहीं है। मैं तो पृथ्वी फोड़ के फाड़ के पाताल में चली जाऊंगी, तो फिर क्या होगा? तो क्या करूं माँ, बताओ। गंगा ने कहा, मात्र महादेव में ये शक्ति है, आप उनको रिझाओ। भगीरथ ने फिर तपस्या की, तो भोले भंडारी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। क्या चाहिए? भगीरथ ने कहा, देव आप, अच्छा ठीक है आता हूँ। आ गए और जटा खोल के खड़े हो गए, और गंगा ने अपना प्रपात शुरू किया, और एक एक जटा लेकर महादेव ने उनको समा लिया, और फिर धीरे से गंगा का प्रवाह प्रवाहित किया। कंट्रोल्ड फ्लो, नॉट अनकंट्रोल्ड फ्लो, कंट्रोल्ड फ्लो। ये गंगा आज हमारी है। उस भागीरथी को तो हमने बंद कर दिया, बांध बना दिया, और आज गंगा की क्या अवस्था है नहीं आप सोच सकते। तो जितना आप स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे और यमुना, हमारी नदियाँ हमारी माता हैं, लोक माता। और आपको मैं फिर से याद करा दूं कि तीसरा विश्व युद्ध अनिवार्य है। थर्ड वर्ल्ड वॉर विल हैपन, बट एवरीबडी नोज इट विल नॉट हैपन फॉर ऑयल और गैस और एनीथिंग, इट विल हैपन फॉर वाटर। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, समझ लीजिए आप, मेरी तो ज़िंदगी निकल गई, आप लोग जो हैं याद रखिए
आपको जीना है, काम करना है, तो जहाँ जहाँ हो सके सोचिए, बोलिए, बताइए, लगिए काम में, जुड़िए। गंगा के लिए मैं जो श्लोक है मैं एक आपसे शेयर करना चाहूँगी। गांगम वारि मनोहारी मुरारी चरणच्युतम् त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमा। गांगम वारी मनोहारी, वारी यानी पानी, गंगा का पानी मनोहर है, देखने में भी, पीने में भी, स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गांगम वारी मनोहारी मुरारी, विष्णु के चरणच्युतम, दाहिने अंगूठे से वामन अवतार में, 5वें अवतार में प्रकट हुई। त्रिपुरारी महादेव, त्रिपुरारी शिरश्चारी, वहां से चली, और पापहारी पुनातुमा। तो ऐसी गंगा की स्तुति हम सब करते हैं। और अब मैं आपको ले चलती हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम शक्ति की आराधना उनके बहुत सारे स्वरूपों में भी करें। मात्र नवरात्रि इज नॉट इनफ। 9 days, हाँ जी उपवास कर रहे हैं, उपवास, और फिर खुद खा रहे हैं, और माँ 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 क्षमा करो, क्षमा करो। इनका जो एक विशेष स्वरूप है जो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्न यानी ऑफ कोर्स एज वी अंडरस्टैंड, हमारी मंडेन बुद्धि में आता है अन्नपूर्णा यानी जो हम खाते पीते, चाहे वो बर्गर है जो भी है, आई डोंट नो, पिज्ज़ा वगैरह जो भी है, लेकिन उसको अन्न नहीं कहा जाएगा। समझ लीजिए डिफरेंस। अन्न वो है जो आपको पोषता है, आपका पोषक है, which sustains you, which nourishes you, not only your body but your mind, your बुद्धि। ये है अन्न। और ये जो अन्नपूर्णा है, one who fulfills, one who is always giving, वो मात्र हम लोगों के लिए नहीं है। सृष्टि में जितने ब्रह्मांड हैं उनको सस्टेन करने वाली है अन्नपूर्णा। आप समझो क्या विराट कल्पना है। इवन जो हवा, ऑक्सीजन है, हवा है, वो भी अन्न है। विदाउट दैट वी कैन नॉट लिव। तो केदार दीजिए। अन्नपूर्णा के विशेष मंदिर हैं। एक तो बहुत प्रख्यात है, आप लोग जाते रहते हैं, काशी वाराणसी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जब जाएं तो याद रखिएगा कि काशी में गंगा जी हैं और वहाँ के भैरव हैं, क्षेत्रपाल। फिर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें से एक विश्वनाथ वहाँ है। लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि विश्वनाथ के मंदिर से बाहर आते ही देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है, और वो इतना सिग्निफिकेंट है, सिंबॉलिक है, वो कहानी उस श्लोक में है। तो मैंने आगे पीछे किया है। अन्नपूर्णा यदि आ गई हैं तो उनके हाथ में, उनका जो आइकॉनोग्राफी है, हाथ में इतना बड़ा कड़छा, वो छोटी चम्मच नहीं, कड़छा, वो पात्र से सारे ब्रह्मांड को अन्न देती है, पोषती है। अब आप सोचिए कि स्वयं शिव शंभु
उनके दरवाजे पे खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। आहा, क्या बात है। वो महादेव, वो शिव शंभु भोलेनाथ क्या नहीं है, गंगाधर, डमरूधर, ईशान, भीम, रुद्र, वो स्वयं देवी के दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो शंकराचार्य ने क्या लिखा, उनका अन्नपूर्णा स्तोत्रम है। मैं एक पहला श्लोक आपके सामने रखना चाहूंगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम प्रणमामि देवी पार्वती। फिर ऐसी पार्वती जो अन्नपूर्णा है। पार्वती कौन है और हम क्या हैं? माता देवी पार्वती, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवा शिवभक्तश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो जिसकी माता पार्वती है, पिता महेश्वर महेश शिव हैं, ऐसे जितने हैं भक्त लोग, हम सब भक्त ही हैं। वो सब मेरे बंधु बांधव हैं। और मेरा घर कहाँ है, स्वदेश कहाँ है? भुवनत्रयम, तीनों भुवन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल मेरा घर है। ये कल्पना है। तो अन्नपूर्णा का श्लोक, नित्यानंद करी वराभय करी, नित्यानंद करी वराभय करी, सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पाप निकरी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि। अब शिव कहें, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। ऐसी अन्नपूर्णा को हम बारंबार नमस्कार करें। और हमें सिखाया गया था कि जब भोजन करने बैठो तो हाथ पांव मुंह धो के तो कम से कम बैठो, और बैठने के बाद भगवती अन्नपूर्णा को, आपके जो इष्ट हैं उनको प्रणाम करो, धन्यवाद दो, बी ग्रेटफुल कि हमें भोजन मिल रहा है। करोड़ों को भोजन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, दाने दाने के लिए तरसते हैं। तो हमारा एक ही अच्छा काम ये हो सकता है कि हम धन्यवाद दें, प्रणाम करें और आनंद से भोजन ग्रहण करें। आई नो ये सब जो नखरे, टैंट्रम्स किसी काम के नहीं है। आज आपको भोजन मिल रहा है, कल का पता नहीं है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इन वैल्यूज़ को हम ग्रहण करें, लें, सोचें, समझें और करें, और दूसरों को भी बताएं हम। और माता अन्नपूर्णा की ये जो स्तुति है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखी है, उस स्तोत्र को, ये पहले कम से कम श्लोक को भी यदि आप इस स्कूल में
सिखा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो अंत में मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ। वसंत पंचमी का तो उत्सव 16 फरवरी को है और उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम भी है। वसंत ऋतु आती है तो सारे जैसे लगता है कि कुदरत जागृत हो गई, प्रकृति खिल गई। हमारे जीवन में भी विंटर आती है, समर आती है, वर्षा होती है। वसंत ऋतु तब आती है कि जब हमारा जीवन प्रेम से भरा हो, सुगंध से भरा हो, अच्छी बातों से भरा हो। वो है जीवन की वसंत। बाकी कुदरत की वसंत तो अब आएगी। और वसंत पंचमी 5वां दिन है, 5वीं तिथि है। वसंत एक्चुअली कामदेव का सारथी है, यू नो दैट। वसंत एज द आइकॉनोग्राफी गोज, कामदेव का जो रथ है उसका चैरियटियर है। तो कामदेव यानी लव। तो वो रथ में वसंत जब आता है, वसंत ऋतु आती है, फूल खिलते हैं, महकती है पूरा वातावरण, तो प्रेम जागृत होता है, स्नेह कुछ होता है। और वो जो होता है उसको आप फील करें, अनुभव करें। तो वसंत पंचमी की आप सबको शुभकामना। और अंत में मैं तो महाशिवरात्रि के पर्व के लिए आपको ले जाती हूँ, जो 11 मार्च को है महाशिवरात्रि। हर एक महीने में शिवरात्रि एक आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। बहुत लोगों से पूछा मैंने, महाशिवरात्रि क्या है? पता नहीं, हम तो उपवास करते हैं, रात को 12 बजे उपवास तोड़ते हैं और आरती पूजा करके खाना खाते हैं। अच्छी बात, वेरी गुड। खाने पे ही हमारा ध्यान टिका हुआ है। जन्माष्टमी है तो कृष्ण का जन्म है, रामनवमी है तो श्री राम का जन्म है, नवरात्रि है तो देवी का पर्व है, नवदुर्गा का पर्व है, वगैरह वगैरह। गणेश चतुर्थी है तो गणेश का है। ये महाशिवरात्रि है क्या? क्योंकि शिव इज अ कॉन्सेप्ट। श्री राम और श्री कृष्ण अवतरित हुए मनुष्य देह में। शिव शक्ति आर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? बिना शक्ति का शिव शव है, और बिना शिव की शक्ति कहाँ जाएगी? ये दोनों का जो मिलन होता है रात को 12 बजे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन डे एंड नाइट मीट फॉर ऑल द तपस्वीज, योगीज, तंत्र, एवरीथिंग टेल्स यू मिडनाइट 12 o'clock। और उस वक्त शिव शक्ति का मिलन होता है। उस मिलन को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है, सिंबल बनाया है। महाशिवरात्रि को शिव पार्वती का विवाह होता है। They come together, they come together। तो इसी आनंद का आप लाभ लीजिए। और श्री कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आदि शक्तिपीठ, वहाँ पर मैंने तो क्या, माँ बुलाती माँ करवाती है। शिव के नवरस का वर्णन किया था। उस कोरियोग्राफी में शुरू में कामेश्वर कामेश्वरी का विवाह, शिव पार्वती विवाह का एक छोटा प्रसंग है, आप देखें।
शिव विवाहे पार्वती शिव विवाहे अंत में सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, इसकी कामना मैं इस प्रकार से करना चाहूँगी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। और शिव शक्ति का मिलन हो चुका है, प्रतिक्षण होता है, एवरी मोमेंट इज हैपनिंग विद इन अस, आउटसाइड ऑल्सो, एवरीवेयर। वी मस्ट सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स। वी मस्ट सेलिब्रेट सत्यम शिवम Sundaram, that eternal truth, that Rit, the cosmic order, जिसको हम कहते हैं सत्य, वही शिव है, वही सुंदर है, वही शक्ति है, वही शिव है। So let us join together, उनको हम धन्यवाद दें, उनका आह्वान करें और कहें कि बोल श्री महादेव शंभो की जय। बोलिए जय, बोलिए, मुंह फाड़िए, मुंह। बोल श्री पार्वती पतीश्वर की जय। हर हर महादेव। उठिए। मैं बुलाना चाहूँगी नंदिनी को और संदीप दत्ता जी को, श्री बालन और श्री सुमित डे। आइए, आ जाओ इधर, आइए, आगे आइए, फिर लोगों को आने की जगह देगी। नंदिनी आइए। संदीप जी ऊपर से आ रहे हैं, ओके। ये ऋषि शंकर हैं, इनके पिताजी भी पखवाज के वो हैं घरानेदार। ये हैं प्रभात जी, इनका इतना छोटा 2 वर्ष का बेटा, मैंने शायद रोहिणी जी को भेजा था, वो गदा लेके जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ पूरे घर में घूमता है। और आइए, यहाँ आइए प्लीज़। संदीप कहाँ गए? संदीप इधर आइए। ये सुमित, ये श्री बालन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके सम्मान में अभिनंदन के लिए हमारे चेयरपर्सन महोदय आपको हमारा स्मृति पल्लव भेंट करना चाहेंगी। आप 2 मिनट का समय। एक प्रश्न रोहिणी आपसे कर रही हूँ, आध्यात्म की गंगा तो पता नहीं, आनंद की गंगा बहे कि नहीं? जी जी जी
हम सभी इसके आपके सामने वित्तीय से मैं कृपया जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैंड से अनुरोध करूंगी कृपया हमारा स्मृति चिन्ह और पल्लव प्रस्तुत करें। गुरु है जो आपको उस मोमेंट में लेके जाता है, उसके लिए कभी कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सा ये रंग मेरे पास नहीं था। So sweet. हमारे स्मृति पल्लव हम देना चाहेंगे श्री प्रभात डांगी जी को और श्री ऋषि शंकर उपाध्याय जी को भी। आप लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूट होइए ना तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, आगे आए बेटे। हाँ जी, ये पकड़ लो बेटे। जी संजय सर ओहो, कृपया तुलसी जी। मंच पर आए। अरे वाह, और तालियों से भी अभिनंदन होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। 2 शब्द और प्रस्तुत करना चाहूंगी अगर आप अनुमति दें तो। जी हाँ खड़े हैं जी। गहे के चरण करे विनती यही ये मन, गहे के चरण करे विनती यही ये मन, ऋतुवन में जो बसंत ही प्रिय है, वैसे ही खनक सुन सुर की झनक सुन, शिव की कथा बसी अपने भी ही है। शब्दन संग जो भाव के रंग जो, भर भर चित्र उकेरे सहज से, सुर ताल गुंद दीनो स्वर के तरंग दीनो, सब अनुग्रहित हैं शिव के दरस से। कर जोरी कोटि से प्रणाम स्वीकारो गुरुजी, कर जोरी कोटि से प्रणाम स्वीकारो, धन्य हुए सुन कथा तव कंठ से, करते अनुग्रह पुनः पधारो, सराबोर करो हमें अपने वचन। वाह 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 वाह, क्या बात। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शीघ्र कवि हैं आप। आप ही की अनुकंपा है, गुरुओं की कृपा है। और इसी के साथ टुडे वी ऑल हैव एक्सपीरियंस डिविनिटी मैम विद इन आवरसेल्व्स। ऑन बिहाफ ऑफ द एनलाइटेंड ऑडियंस आई थैंक यू गुरुजी for this out of the world experience. Profound thanks to our chairperson ma'am for bringing such serenity in our lives. My bouquet of gratitude for Director Sir for creating such a rich tradition in the school, and deep gratitude to our principal whose eye for details has sculpted this program to perfection. Heartfelt thanks to eminent guests and dignitaries for gracing the occasion, and thanks to our admin team for making this event a very successful one. Ma'am. सबको मेरा नमस्ते। और सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनल मैम। आपको मैं सोनल माँ भी बुलाती हूँ, और उस रिश्ते से और गुरु के रिश्ते से, और आज आपने सबको एक इतना सुंदर पाठ कथा करके जो सुनाई है उसके रिश्ते से आपका शुक्रिया करती हूँ। आप बच्चों जो आज मुझे आप सब देखोगे और सुनोगे, आप सब इस बसंत पंचमी की प्रथा स्कूल के हिस्सेदार रहे हो बहुत बहुत सालों से, और कुछ आज से जुड़ रहे होंगे, कुछ जुड़ ही नहीं सके क्योंकि नर्सरी शुरू ही नहीं हो सका। तो फिर भी आप जहाँ पे भी आज हमें सुनोगे, सबसे पहले बसंत पंचमी में हम अपने गुरु जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया उनको प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्रिया करती हूँ कि इस स्कूल में शिव नाम आज गूंजा। ड्रमरू की आवाज़ जो आपने निकालकर इसको पवित्र किया, शिव शिव कहकर इसे पवित्र किया, पार्वती को याद किया, उस भगवान को शुक्रिया करती हूँ जिनकी कृपा से ये सब यहाँ हो। थैंक यू। और टीचर्स जो आज आपने वैल्यू सीखी हैं, अगेन प्रथा सुनना और स्मरण करना, इस प्रथा को आपने अब आगे लेके जाना है। ट्रेनिंग द ट्रेनर्स का आज एक पार्ट 1 था, ठीक है। आप सभी की उपस्थिति से आज हमारे विद्यालय बिल्कुल धन्य महसूस कर रहा है। सभी का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद।